Today we will be going to study angle of intersection of circles and orthogonal circles. So let's wait for some time and then I will start. Actually, I will be doing a different topic. I don't know Anshul sir ने कहाँ पे छोड़ा हुआ है, but what I had a discussion with Anshul sir is he told me to do angle of intersection of circle and orthogonal circle. So I will be doing that part. Okay. So let's start. So the topic is angle of intersection of two circles. Angle of intersection of circles. So angle of intersection of any two curve, actually not particularly circle, angle of intersection of any two curve is angle between
angle between tangents at the point of the intersection. At the point of intersection of two circles. So the angle of intersection of any two curve is at that particular point is angle between the tangents of the two curves at that particular point. ठीक है. तो as far as this circle is concerned, suppose this is a circle and this is a second circle. I just started. ठीक है. And suppose this is point of intersection. This point of intersection is point P, suppose. This is point P. And suppose this is the tangent to this circle. This is the tangent to the circle C1, suppose. Yes, C2 मान लेते हैं इसको, हम लोग मान लेते हैं C2. And this is the center of the second circle, which is suppose C1. ठीक है. This is suppose S equal to 0 and this suppose S dash equal to 0. And at this point P, this is point P. The tangent to the circle whose center is C1 is this, suppose. So this is suppose L1 equal to 0. And the second one is suppose L2 equal to 0. So this L2 is tangent to circle C1 and L1 is tangent to circle C2. And suppose this is point of intersection. This is what I am doing is I am joining that point of intersection with the center C1 and I am joining this point of intersection with center C2. And C1 and C2 are the center of the two circles. Okay. So this angle is theta, and this angle theta is angle between the tangents. Tangents at point of intersection. And this is only the angle of intersection of two circles. Angle of intersection of circles S and H dash. ठीक है. तो दिस इज व्हाट द डेफिनेशन इज. कभी भी कोई भी दो कर्व हैं इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एंगल बिटवीन दोस टू कर्व एट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इस दोनों की टेंजेंट ड्रॉ करना है उस पॉइंट पे, और टेंजेंट के बीच में जो एंगल होगा दैट वुड बी योर एंगल ऑफ इंटरसेक्शन. नाउ दिस एंगल मस्ट बी 90 डिग्री. यहाँ पे देखना थोड़ा सा, दिस एंगल इज 90 डिग्री. जस्ट अ सेकेंड. दिस एंगल मस्ट बी 90 डिग्री. आई होप आपको समझ में आ रहा है, बिकॉज C1P इज परपेंडिकुलर टू L2, because L2 is tangent to C1, correct? Similarly, this angle is also 90 degree. ठीक है. And the angle between this blue line and the green line is angle theta. वो angle यहाँ पे भी होगा. This angle is also angle theta. ठीक है. But I am not concerned about this angle right now. थीटा इसीलिए होगा क्योंकि opposite angle होगा. I am concerned about this angle. Suppose this angle is angle alpha. This angle is the angle alpha. And suppose if I join this two line, this is C1, C2, मतलब I am joining the center C1 and C2. So suppose
this S dash, S is suppose x square plus y square plus g plus y square plus 2g1x plus 2f1y plus c1 equal to 0. ठीक है. So the radius of this circle is suppose r1, that we can easily identify, that easily we can find out g1 square plus f1 square minus c1, and the center is minus g1 comma minus f1. Similarly, take this s dash, x square plus y square plus 2g 2x plus 2f2y plus c2 is equal to 0, and the radius r2 under root of g2 square plus f2 square minus c2, and the center is minus g2 comma minus f2. ठीक है. And suppose the c1 c2 is the distance between the between centers, and suppose this is equal to d. ठीक है. So the first thing which we need to keep in mind is theta plus pi by 2 plus alpha या कुछ इशू हुआ था. नाउ द कनेक्शन इज बैक. आई थिंक नाउ आई एम ऑडिबल. ठीक है. तो दिस एंगल थीटा प्लस पाई बाई 2 प्लस अल्फा प्लस पाई बाई 2 इज इक्वल टू 2 पाई. So from here I can deduce theta plus alpha is equal to pi. ठीक है. ठीक है. दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट. नोटेड डाउन. आगे बढ़ते हैं, फिर एंगल निकालते हैं हम लोग दोनों के बीच का. और आई विल सेंड यू द पीडीएफ एज वेल. ये जो अल्फा एंगल है इसमें कंफ्यूज मत होना. दिस अल्फा जो एंगल है, दिस इज एंगल बिटवीन this is angle between C1P and C2P. मतलब दोनों रेडियाई के बीच का जो एंगल है दैट इज एंगल अल्फा. डैश लाइन कुछ रिप्रेजेंट नहीं कर रही है. डैश लाइन मेरे साइड से मैंने कंस्ट्रक्शन किया हुआ है कि मैंने C1P जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उसको दोनों के सेंटर से ज्वाइन किया है, C1P एंड C2P. और इनके बीच का जो एंगल है दैट आई हैव टेकन अल्फा. I am not concerned about alpha, I am concerned about theta. Theta is my angle between the circles, because theta is the angle which is angle between the tangents at the point of intersection. L1 और L2 के बीच का एंगल थीटा है. L1 और L2 के बीच का एंगल थीटा है, और थीटा जो है वो एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सर्कल्स है. नहीं, वांट अल्फा, अल्फा और बीटा इक्वल नहीं होगा. आप थोड़ा सा डायग्राम में देखो. अगर आप देखोगे अल्फा थीटा दोनों टेंजेंट्स के बीच का एंगल है. अगर मैं यहाँ पे ये वाला एंगल बनाता, आप ध्यान देना, अगर मैं ये वाला एंगल बनाता, दिस वन, ओनली दिस वन, दिस वन,
ये वाला एंगल अगर मैं बनाता तो ये मेरे पास थीटा होता, मतलब जो ग्रीन लाइन है और जो ब्लू लाइन है उसके बीच का एंगल थीटा है, ये दोनों डॉटेड लाइन के बीच का एंगल अल्फा है। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना उसमें। C1 into C2 नहीं है रे भाई, वो मैंने इसीलिए देख, व्हाट इज द C1 into C2 नहीं है। द C1 C2 इज व्हाट, C1 C2 इज डिस्टेंस बिटवीन centers, and that I am representing by small d. Okay, any other confusion? दोनों की इक्वेशन निकालनी पड़ेगी निश्चित, राइट? दोनों की एंगल, तो अगर तू पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को घुसाएगा तो दोनों की इक्वेशन निकालनी पड़ेगी टेंजेंट्स की। और पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में घुसने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, टेंजेंट t इक्वल टू 0 से निकाल सकता है दोनों के बीच का एंगल, तो तू एनी टाइम निकाल ही सकता है। दैट इज नॉट अ चैलेंज। व्हाट इज चैलेंजिंग इज यू नीड टू फाइंड आउट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के बाद t इक्वल टू 0 से दोनों टेंजेंट की इक्वेशन तो निकाल ही सकते हो, दोनों के बीच दो लाइन के बीच का एंगल भी आप निकाल सकते हो। दैट इज द डायरेक्ट थिंग, वो तो हमेशा ही कर सकते हो, वो तो चलेगा। ठीक है, तो वो तो आपका जो नॉर्मल आपने पुराना पढ़ा है, आपको सिर्फ मैंने ये डेफिनेशन अगर दे दी है और आपने जो पुराना पढ़ा हुआ है तो भी आप उसको इंटरप्रिटेशन से निकाल सकते हो। दैट इज नॉट अ बिग थिंग। ठीक है, क्योंकि टेंजेंट की इक्वेशन ही तो निकालनी है, जैसे भी आप निकाल लोगे फिर उसके बीच में दोनों का एंगल। चलो ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। आई होप ये आपने लिख लिया हो। अब थोड़ा सा नीचे चलते हैं। अब मैं ये जो डायग्राम है मेरे पास C1P C2 ट्राइंगल बना लेता हूँ एक बार और। C1P C2, तो C1P C2 जो ट्राइंगल बनेगा, बन रहा है, ये पॉइंट सपोज अगर C1 है, ये पॉइंट सपोज P है, एंड ये पॉइंट सपोज C2 है। कुछ इस टाइप का सीन बन रहा है। और ये जो C1 C2 है, तो मैंने जो लिया हुआ है वो इस डिस्टेंस को तो मैंने d ले लिया है, ये डिस्टेंस मेरे पास r1 है और ये डिस्टेंस मेरे पास r2 है, राइट? दिस डिस्टेंस इज r1 बिकॉज द रेडियस, दिस डिस्टेंस इज r2, एंड दिस C1 C2 मेरे पास क्या है, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द सर्कल। ठीक है, एंड दिस एंगल जो इन दोनों के बीच का एंगल है, वो एंगल कितना है मेरे पास, अल्फा। दिस एंगल इज माई अल्फा। नो आई कैन से दैट कि cos ऑफ अल्फा, आई होप यू नो इट, एंड अगर नहीं भी पता है आपको तो ये याद रखना, दिस इज कॉल्ड द कोसाइन रूल, एंड कोसाइन रूल विल हेल्प यू टू फाइंड आउट द एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इफ यू नो द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। अगर R1 R2 D आपको पता है तो आपको अगर कोई भी एंगल निकालना है तो यू कैन फाइंड इट आउट विद द हेल्प ऑफ द कोसाइन फॉर्मूला। जैसे यहाँ पे अल्फा एंगल निकालना है, जो R1 और R2 जो डिस्टेंस है, जो साइड्स है उनके बीच में है, तो कॉस अल्फा का जो फॉर्मूला होता है कोसाइन रूल से, वो कितना होता है पता है आप लोगों को, R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, बोले तो दोनों एडजेसेंट साइड्स के स्क्वायर का एडिशन माइनस ऑपोजिट साइड्स का स्क्वायर, डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ R1 R2 होता है। ठीक है, दिस इज द कोसाइन फॉर्मूला। ठीक है, नो यू कैन से कि ये जो अल्फा है आपके पास, थीटा प्लस अल्फा आपके पास कितना है, पाई पाई था, ये हम ऑलरेडी यहाँ पे निकाल चुके थे कि थीटा प्लस अल्फा इक्वल टू पाई है। तो आई कैन से दैट कि अल्फा इज इक्वल टू कितना है, सॉरी, अल्फा इज इक्वल टू कितना है, पाई माइनस थीटा। हाँ, दिस फॉर्मूला यू नीड टू रिमेंबर बेटा, ये आपको पता होना चाहिए। कोसाइन रूल इज अ वेरी जनरल फॉर्मूला जो आपको पता होना चाहिए, आगे कभी भी यूज आए तो। सो देयरफॉर अगर मैं कॉस अल्फा की बात करूं तो कॉस अल्फा इज इक्वल टू कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा हो जाएगा, एंड देयरफॉर यू कैन से दैट के कॉस ऑफ अल्फा इज इक्वल टू माइनस कॉस ऑफ थीटा हो जाएगा। करेक्ट? तो कैन आई से दैट के मॉड ऑफ कॉस अल्फा और मॉड ऑफ कॉस थीटा बराबर होंगे, दोनों कॉस अल्फा और कॉस थीटा न्यूमेरिकली बराबर होने वाले हैं। ओनली द डिफरेंस क्या आने वाला है, साइन का डिफरेंस आने वाला है। तो इफ थीटा इज इक्वल टू 110 डिग्री आने वाला है तो अल्फा 70 डिग्री आने वाला है। इफ थीटा इज इक्वल टू 50 डिग्री आने वाला है तो अल्फा इज इक्वल टू कितना आने वाला है,
अकॉर्डिंगली 180 माइनस 50 आने वाला, 130 डिग्री आने वाला, कुछ इसी टाइप का इन दोनों का सीन बनने वाला. एंड इफ आई नीड टू फाइंड आउट द एक्यूट एंगल, अगर एक्यूट एंगल निकालना है और उसका मेरे को कॉस ऑफ थीटा लेना है, तो कैन आई से दिस के दिस इज इक्वल टू R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ R1 इंटू R2. देखो यहां से अगर आप ध्यान देना, अगर आप यहां से कॉस अल्फा को लिखोगे तो माइनस कॉस थीटा लिखोगे, तो यहां से जो आपके पास आएगा माइनस कॉस ऑफ थीटा. बट आई एम नॉट कंसर्न अबाउट साइन राइट नाउ. मैं साइन को नहीं ले रहा हूँ एक्यूट ऑप्ट्यूस में, मैं एक्यूट एंगल को ले रहा हूँ. तो इसीलिए मैंने उसको साइन भूल गया और मैंने बोला कि कॉस थीटा की जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो मेरे पास क्या आ रही है, R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ R1 R2. एंड आई एम कंसिडरिंग दिस, एंड मैं इसको बोल रहा हूँ दिस इज द एक्यूट एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स. हम जो लाइन के बीच का एंगल भी निकालते हैं, जो हम टेन थीटा का फॉर्मूला लिखते हैं, जो स्टार्टिंग में आपने पढ़ा होगा, मॉड ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन में 1 प्लस m1 m2, मॉड इसीलिए निकालते हैं क्योंकि हम उन दोनों लाइन के बीच का एक्यूट एंगल निकालते हुए रहते हैं, राइट. दैट इज द रीजन ऑफ दैट मॉड. सिमिलरली मैंने मॉड यहाँ पे भी लिखा हुआ, आई एम फाइंडिंग आउट द एक्यूट एंगल बिटवीन दोस लाइन्स. ठीक है. सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर एंगल बिटवीन द two tangents, or you can say the angle between the circles at their point of intersection. You need to remember this formula. नोट डाउन कर लो इसको, फिर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, एक दो चार चीजें और हैं इसमें. हाँ, फर्स्ट पेज पे मैं आ रहा हूँ, पहले इसको नोट डाउन कर लो, उसके बाद मैं एक बार और फर्स्ट पे चले जाऊंगा बेटा, ठीक है. देख, दो कृष्णा, दो लाइन के बीच में क्या करता है, तू दो लाइन के बीच में जब फॉर्मूला लगाता है तो तू एक्यूट एक्यूट एंगल निकालता है, ऑब्ट्यूज एंगल निकालता है. हम वो फॉर्मूला एक्यूट एंगल के लिए बोलते हैं, करेक्ट, जो टेन थीटा इक्वल टू मॉड ऑफ m1 माइनस. तो वो सेम लॉजिक यहाँ पे भी है, क्योंकि ओवरऑल व्हाट यू आर डिफाइनिंग एंगल बिटवीन द सर्कल, यू आर डिफाइनिंग इट इज एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स. And if you are defining it angle between the two tangents are straight lines, so we are finding out the acute angle. It is not necessary acute angle, obtuse angle भी उन दोनों लाइन के बीच का ही एंगल होगा. अगर 70 डिग्री है तो 110 डिग्री भी होगा, दैट इज पार्ट. बट हम जनरली एक्यूट एंगल में डील करते हैं तो हम जनरली उसको लिखते हैं, दैट्स ऑल. एक्यूट एंगल का पॉजिटिव इसीलिए लिया है बेटा, क्योंकि एक्यूट एंगल जो है वो 90 डिग्री से छोटा होना है. अभी वो 90 डिग्री से छोटा होना है तो कॉस पॉजिटिव होना है, करेक्ट. 90 डिग्री से छोटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस इज पॉजिटिव. अगर ऑब्ट्यूज की बात करता तो एंगल 90 से बड़ा होता, और एंगल 90 से बड़ा होता तो कॉस नेगेटिव होता. तो मेरे को पॉजिटिव, इसीलिए मैंने उसमें मॉड डाल दिया. ठीक है, चलो, आई होप आपने ये लिख लिया हो. ये आगे वाला फ्रंट पेज इसका बचा हो. यस जय, बोल. हाँ सर, मतलब ये एंगल थीटा जो है वो एंगल ऑफ इंटरसेक्शन है, तो वो मतलब ये ऑब्ट्यूज भी हो ही सकता है ना. हाँ, ऑब्ट्यूज तो दो लाइन के बीच का एंगल, अगर तू 70 डिग्री बोल रहा है तो इट इटसेल्फ मींस कि 110 डिग्री एक और एंगल होगा, करेक्ट. हाँ 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 हाँ, समझा. करेक्ट. हाँ. हाउ देयर सम इज नॉट 90 डिग्री, देयर सम इज पाई बेटा. दिस इज द रिलेशन. वाई? बिकॉज डायग्रामेटिकली यू कैन सी ना, देखिए जितने भी रेड वाले एंगल है इनका समेशन कितना आने वाला है. एक बार और मैं रिपीट कर रहा हूँ, जिसको डाउट है, ये एंगल अल्फा है, दिस एंगल इज एंगल अल्फा, करेक्ट. दिस इज पाई बाय टू, यहाँ पे ये वाला एंगल पाई बाय टू है. दिस एंगल, ये डॉटेड लाइन के बीच का एंगल कितना है, अल्फा. और फिर ये डॉटेड से ये वाली लाइन के बीच का एंगल कितना है, 90. तो दो 90 और एक थीटा और एक अल्फा मिलके कितना हो जाएंगे, 360 डिग्री हो जाएंगे.
हाँ, वी नीड टू रिपोर्ट एंगल थीटा, एंगल बिटवीन द थीटा इज आवर एंगल बिटवीन द सर्कल्स. ठीक है, क्लियर? शुड आई मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड? चलो, तो एक छोटा सा क्वेश्चन आप लोग कर लो. फाइंड एंगल बिटवीन द सर्कल्स between circles x square plus y square plus x plus y equal to 0, x square plus y square plus x minus y equal to 0. इन दोनों के बीच का एंगल आप मेरे को जल्दी से निकाल के दे दो. देखो नील, मॉड क्यों ले रहा हूं? क्योंकि मैं एक्यूट एंगल निकाल रहा हूं. मैं क्या कर रहा हूं? दोनों टेंजेंट के बीच का एक्यूट एंगल निकाल रहा हूं. अब एक्यूट एंगल निकाल रहा हूं तो इसका मतलब क्या? एंगल 90 से छोटा है. अभी एंगल 90 से छोटा है तो उसका कॉस पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? पॉजिटिव. तो दैट्स वाई हमको पॉजिटिव लेना पड़ेगा. करेक्ट सूर्या? तो दैट्स वाई कॉस को हमने क्या ले लिया? पॉजिटिव ले लिया. या राइट हरी प्रजस? करेक्ट सूर्या. ये पढ़ चुके हो क्या तुम? राइट. तो आंसर इज 90 डिग्री. क्या हो रहा है? ये जो पहला वाला सर्कल है इसका सेंटर आ रहा है -1/2 -1/2 और इसकी रेडियस जो आ रही है R1 दे देता हूँ, वो 1/√2. और इस वाले सर्कल का जो सेंटर आ रहा है दैट इज -1/2 1/2 और इसकी जो रेडियस आ रही है R2. एम आई करेक्ट? अब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकाल लेते हैं. इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना आ रहा है? वो आ रहा है 1 यूनिट. दैट यू कैन फाइंड आउट, राइट? डिस्टेंस फॉर्मूला या डायरेक्ट कोऑर्डिनेट देख के भी बता सकते हो इस केस में. तो माई कॉस थीटा इज इक्वल टू R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर. ये पढ़ चुके हो क्या बेटा आप लोग? नहीं पढ़े हो ना? R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर माइनस ऑफ डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ R1 इंटू R2. दिस इज अवर फॉर्मूला, करेक्ट? इसका मॉड लेना है, डेफिनेटली मॉड ले लो. मॉड क्या ले लो? ये तो कितना आ गया? कॉस थीटा इक्वल टू 0 आ गया. और कॉस थीटा इक्वल टू 0 आ गया, राइट? तो थीटा इज इक्वल टू कितना आ रहा? π/2 आ गया. और यू कैन से 90 डिग्री आ गया. करेक्ट? ये आपने रिजल्ट निकाल लिया. अब यहाँ पे मैं एक और नया वर्ड इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ. ये तो नॉर्मल आपने जो क्वेश्चन करना था कर लिया. इन दोनों के बीच में जो π/2 एंगल आया इसका अपने आप में एक मीनिंग है.
if the angle between the circle is 90 degree, if angle between the circles is 90 degree, then the circles are orthogonal circles. Orthogonal circles, or you can say orthogonal to each other. Yeah, they intersect orthogonally. So there are many words, but overall the thing is orthogonal circle. These two circles are orthogonally. Why they are orthogonally? Because they are intersecting at 90 degree. So if the angle of intersection between the two circle is 90 degree, then those circles are called the orthogonal circles. Yes, बेटा बोलो. हाँ तो एक बार बता देंगे कि ऑर्थोगोनल का मतलब क्या होता है? हाँ. मतलब एक फिगर ड्रॉ करके. हाँ हाँ, वो फिगर मैं ड्रॉ करके आऊंगा. मैं सिर्फ अभी आपको इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ. मैं अभी फिगर भी बनाऊंगा, मैं अभी कंडीशन भी निकालूंगा. डोंट वरी अबाउट इट. ठीक है, मैं जनरल इक्वेशन लेके कंडीशन निकालूंगा कि ऑर्थोगोनल सर्कल की कंडीशन क्या होती है. आई एम जस्ट इंट्रोड्यूसिंग द वर्ड ऑर्थोगोनल. ऑर्थोगोनल का जो मतलब होता है वो 90 डिग्री से रिलेटेड होता है. ऑर्थोगोनल वर्ड सिर्फ सर्कल्स के लिए नहीं होता है. इनफैक्ट क्या होता है कि जैसे कि आप कोऑर्डिनेट सिस्टम जो पढ़ते हो, वो जो कोऑर्डिनेट सिस्टम आप पढ़ रहे हो जिसमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस लेते हो और उनके बीच में कितना एंगल लेते हो, 90 डिग्री लेते हो, करेक्ट. तो वो 90 डिग्री होता है ना, इसके कारण इसको ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट सिस्टम भी बोला जाता है. आपने शायद थोड़ा सा पढ़ा होगा कि कभी कभी कोई सिस्टम ऐसे भी होते हैं जिसके अंदर 90 डिग्री नहीं होता है. जो मेन लाइन होती है हमारे इसमें एक्स और वाई एक्सिस जो है वो 90 डिग्री है. तो देयर आर सिस्टम्स विच आर कॉल्ड ऑब्लिक सिस्टम, जिसमें 90 डिग्री नहीं होता है. दैट इज नॉट इन अवर सिलेबस एक्चुअली. तो यहाँ पे जो हम सिस्टम यूज करते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम, उसके अंदर जो हमारी मेन लाइन होती है, जो हमारी रेफरेंस लाइन जिसको आप बोल सकते हो एक्स एंड वाई एक्सिस, उनके बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है. तो हम उसको ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट सिस्टम भी बोलते हैं. तो दैट ऑर्थोगोनल वर्ड इज एसोसिएटेड विथ 90 डिग्री. तो यहाँ पे भी हम उसको क्या बोल रहे हैं, ऑर्थोगोनल सर्कल्स, बिकॉज द सर्कल्स आर इंटरसेक्टिंग एट 90 डिग्री. टेंजेंट्स के बीच में कितना एंगल है, 90 डिग्री का है. क्लियर है. तो द वर्ड ऑर्थोगोनल मीन्स 90 between the circle is 90 degree, then the circle are called orthogonal circles. Or you can say that the circle are intersecting orthogonally. Circles are intersecting हाँ, बोल सकता है चंद्रेश कि वो एक बस वर्ड. ठीक है, अब मैं ये आपको समझ में आ गया कि ऑर्थोगोनल सर्कल का क्या मतलब होता है. हम इसको थोड़ा और डिटेल में पढ़ना है. आई होप आपने ये सब कॉपी कर लो. फिर नेक्स्ट स्लाइड पे आता हूँ जिसमें ऑर्थोगोनल सर्कल के बारे में बात करते हैं. यस सर. हेलो सर. हाँ आपने लास्ट स्लाइड में क्या किया था, एक बार दिखा सकते हो क्या? हाँ, मैं प्लीज, आता मैं हूँ एक दो लास्ट मिनट के. स्लाइड. ठीक है, ठीक. आई होप ये आपने कॉपी कर लिया हो. दिस इज द लास्ट स्लाइड का फर्स्ट पार्ट एंड दिस इज लास्ट स्लाइड का सेकंड पार्ट. यस सर, ये सब कॉपी कर लिया. थैंक यू सर. मैं एक्चुअली एक दो मिनट चलिए, करने का क्या हुआ लास्ट. ओके सर, थैंक. ठीक है. तो आई थिंक ये ऑर्थोगोनल सर्कल का आपको मतलब समझ में आ गया. लेट्स टॉक अबाउट दिस इन डिटेल. कंडीशंस निकालते हैं हम लोग. तो लेट्स टॉक अबाउट ऑर्थोगोनल इंटरसेक्शन. इनफैक्ट नॉट सर्कल, अगर कोई भी दो कर्व है जिनके बीच का एंगल एट देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज 90 डिग्री, देन दोस कर्व्स आर कॉल्ड ऑर्थोगोनल या ऑर्थोगोनली इंटरसेक्टिंग कर्व्स. And that the definition is also not limited to circles. This is extended to other curves as well.
मतलब दूसरे कर्व्स में भी सेम आप एंगल बिटवीन द कर्व्स के बीच में निकाल सकते हो। तो ऑर्थोगोनल सर्कल्स इंपॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि इसके क्वेश्चंस आएंगे, मतलब दिखेगा काफी जगह इसका एप्लीकेशंस आएगा। इफ द एंगल बिटवीन द if angle between the circles is 90 degree, then circles, right Brian, then circles are said to be orthogonal circle. अब हमको क्या करना है, हमको ऑर्थोगोनल सर्कल्स की कंडीशन निकालनी है, राइट? नहीं, दैट फॉर्मूला इज नॉट वैलिड फॉर एनी कर्व बेटा। cos theta वाला formula that is particularly applicable for the circle only, but the concept is applicable to all the curves. I mean the angle of intersection of two curves is angle between the tangents of those curves. That is the definition. That definition is applicable everywhere. Because उसके अंदर जो cos theta के अंदर जो formula निकाला that is particularly for circles. ठीक है, तो अब मैं उसी पे आऊंगा कि अगर दो सर्कल कट कर रहे हैं, राइट, करेक्ट, इसको जो आपने मेरे को अभी रीजंस लिख के दिए कि सर ऑर्थोगोनल सर्कल में कंडीशंस क्या आएंगी, कोई मेरे को लिख के बोल रहा है कि r1² प्लस r2² इक्वल टू d² होने वाला है, कोई मेरे को लिख के बोल रहा है कि सर टेंजेंट सेंटर से पास होने वाली है, कोई लिख के बोल रहा है कि सर ट्वाइस g1 g2 प्लस f1 f2 इक्वल टू c1। ये सारी कंडीशन सेम है, ये सारी चीजें भी सेम है, राइट, सिर्फ उसको देखने का नजरिया अलग अलग है। देखो एक चीज मैं बताता हूँ क्या हो रहा है, कि मान लो ये जो हमारे पास हमने एक जो सर्कल लिए थे वो कुछ इस टाइप के हैं। सपोज दिस इज द फर्स्ट सर्कल एंड दिस इज द सेकंड सर्कल। सपोज दिस आर द टू सर्कल्स, दोनों की टेंजेंट बनाता हूं। इस सर्कल की जो मैं टेंजेंट बनाऊंगा और इस सर्कल की जो टेंजेंट बनाऊंगा, तो आप नोटिस करोगे कि भाई ये जो एंगल, ये जो पॉइंट है, ये C1 मतलब इस लाइन, इस सर्कल के टेंजेंट पे लाना चाहिए, लाई करना चाहिए, और C2 भी इस सर्कल के टेंजेंट पे लाई करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अब आप क्या बोल रहे हो, आप ये बोल रहे हो कि सर ये जो एंगल है, ये दोनों एंगल 90 डिग्री ले लो। तो अगर मैंने ये एंगल जो थीटा था मेरे पास लास्ट स्लाइड में, वो थीटा मैंने क्या ले लिया, 90 डिग्री ले लिया। तो अगर मैंने थीटा 90 डिग्री ले लिया, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि ये जो सेंटर से ज्वाइन करने वाली लाइन थी रेडियस, वो टेंजेंट के तो परपेंडिकुलर थी, वो होती ही है हमेशा। तो अब ये भी 90 डिग्री हो गया, मतलब यही लाइन तो इस दूसरे वाले सर्कल की टेंजेंट हो गई डायग्रामेटिकली अगर आप देखोगे। तो एक्चुअली सर्कल की टेंजेंट दूसरे सर्कल की डायमीटर बन गई है, या फिर आप बोल सकते हो कि एक सर्कल की टेंजेंट दूसरे सर्कल के सेंटर से पास हो रही है, करेक्ट। और ये जो हमारा C1 C2 था, इसको तो आप एज इट इज मिला ही लो। ये हम R1 लेके चलते थे, ये हम R2 लेके चलते थे, ये हम D लेके चलते थे, ये हम S इक्वल टू 0 लिया था हमने, और इसको हमने H डैश इक्वल टू 0 लिया था। तो एक बार हम इक्वेशन लिख लेते हैं, फिर उसको और समझ लेते हैं कि क्या होगा। सपोज S जो है हमारे पास, दैट इज x² प्लस y² प्लस 2g1x प्लस 2f1y प्लस C1 इक्वल टू 0, पहला सर्कल हो गया। इस सर्कल के सेंटर की बात करूंगा तो -g1 -f1 हो जाएगा, राइट। और इसके रेडियस की बात करूंगा तो इसकी जो रेडियस अगर मैं R1 लेता हूं तो R1 मेरे पास कितनी आ जाएगी, g1² प्लस f1² माइनस C1, राइट। हाँ, मैं डायमीटर वापस से एक्सप्लेन कर देता हूं। और ये एच डैश इक्वल टू 0 जो सर्कल है, तो एच डैश में इसको कुछ ऐसा मान लेता हूं भाई, x² प्लस y² प्लस 2g2x प्लस 2f2y प्लस C2 इक्वल टू 0।
and the center of this circle is minus g2 comma minus f2, and the radius of this circle is suppose r2, which is under root of g2 square plus f2 square माइनस c2। कुछ इस टाइप से होगा। एक बार अगेन मैं डायग्रामेटिकली मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, उसको ध्यान देना। दिस इज सेंटर सपोज s1, ठीक है, एंड दिस l1 इक्वल टू 0 इज द टेंजेंट ऑफ दिस सर्कल। तो भाई ये अगर टेंजेंट है तो मैं बोल सकता हूं ना कि ये एंगल तो हमेशा 90 डिग्री रहना ही रहना, राइट। अब अगर ये एंगल भी 90 डिग्री है, कौन सा, ये एंगल 90 डिग्री क्यों है? क्योंकि अब आपने ऑर्थोगोनल सर्कल लिया है तो टेंजेंट्स के बीच का एंगल कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। तो ये जो L1 वाली टेंजेंट है, इसको कंपलसरी इस C2 पॉइंट से पास होना पड़ेगा बेटा। क्यों होना पड़ेगा? क्योंकि जो C2 से आप इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉप करोगे, ये जो दूसरी L2 इक्वल टू 0 है, वो अगर C2 की टेंजेंट है तो ये एंगल भी उसको 90 चाहिए। तो ये सारे जितने भी एंगल आएंगे ना, आप नोटिस करोगे सारे एंगल कितने आ जाएंगे, 90 डिग्री आ जाएंगे। तो वहां जो अल्फा और थीटा था, यहाँ पे अल्फा और थीटा भी दोनों 90 डिग्री हो जाएंगे। ये तो 90 ऑलरेडी था और ये भी ऑलरेडी 90 था। इसको थीटा लिया था हमने, तो ये दूसरे वाले को क्या लिया था, अल्फा लिया था। अब उसको 90 लिया तो भाई ये भी तो 90 हो गया, राइट। तो आप बस कुछ इस तरीके से इमेजिन कर लो कि अगर ऑर्थोगोनल सर्कल्स हो रहा है तो डायग्राम कुछ इस टाइप का बनेगा कि एक उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे एक सर्कल की टेंजेंट दूसरे सर्कल की डायमीटर हो जाएगी या दूसरे सर्कल के सेंटर से पास होगी, करेक्ट। कुछ इस टाइप का सीन आएगा। अब यहाँ पे जो हमारा C1 C2 वाला जो डिस्टेंस है, C1 और C2 डिस्टेंस विच इज इक्वल टू स्मॉल d जो हमने दिया था, दैट इज अंडर रूट ऑफ माइनस G1 प्लस G2 का स्क्वायर प्लस माइनस ऑफ F1 प्लस ऑफ F2 का स्क्वायर आ जाएगा। अब देखो, इसको दो तरीके से समझ सकते हैं, मैं दोनों तरीके से आपको यहाँ पे लिख के बताता हूँ। पहला तरीका आप ये बोल सकते हो कि जो कॉस ऑफ थीटा था मेरे पास, वो कितना हो गया, वो हो गया मेरे पास कॉस ऑफ 90 डिग्री। ध्यान देना, थीटा 90 डिग्री हो गया, तो थीटा 90 डिग्री हो गया, तो मेरे पास ये कितना हो गया, 0 हो गया। और 0 किसके बराबर आ गया, R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर के बराबर आ गया। मेरा फॉर्मूला तो यही बोलता था, राइट। न्यूमरेटर में क्या होता था, कॉस थीटा में R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। तो मेरे पास क्या हो गया कि R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर 0 हो गया। या सेकेंड आप ये बोल सकते हो कि भाई ये जो C1P C2 ट्राइंगल है, ये पॉइंट P हमने नाम लिया था इसका, राइट। तो C1P C2 है, इट्स ए राइट एंगल ट्राइंगल, इट्स ए राइट एंगल ट्राइंगल। और राइट एंगल ट्राइंगल है तो यू कैन से दैट कि ये जो राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल एट पी है। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा तो मैं ये बोल सकता हूँ R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर इक्वल टू किसके बराबर आने वाला है, डी स्क्वायर के बराबर आने वाला है, करेक्ट। तो दोनों जगह से आप देखोगे, दोनों जगह से आपके पास कंडीशन वही आएगी भाई कि R1 स्क्वायर और R2 स्क्वायर का एडिशन इक्वल टू डी स्क्वायर होना चाहिए। तो एक्चुअली यू कैन से कि दिस इज द कंडीशन फॉर दिस इज द कंडीशन फॉर द ऑर्थोगोनैलिटी ऑफ टू सर्कल्स, के दोनों की जो रेडियस है और दोनों के सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस है, उसमें ये रिलेशन होना चाहिए, R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर इक्वल टू डी स्क्वायर होना चाहिए। और अगर इसको हम यहाँ पे सॉल्व करें, हाँ दोनों सेम हुआ, करेक्ट। तो अगर आप इसका डिस्टेंस निकालोगे, अगर यही वाली रिलेशन आप इनके टर्म्स में निकालोगे, तो R1 आपके पास कितनी हो गई, अंडर रूट ऑफ G1 स्क्वायर प्लस F1 स्क्वायर माइनस C1, दिस इज R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर इज इक्वल टू डी स्क्वायर विच इज अंडर रूट ऑफ माइनस G1 प्लस G2 ठीक है, द स्क्वायर ऑफ, इसको मैनिपुलेट करोगे, इसको सॉल्व करोगे, सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आ रहा है इसका,
स्क्वायर में अंडर रूट सारे अलग हटाएंगे, सिंप्लीफाई करोगे तो फाइनल कंडीशन विच यू विल गेट इज ट्वाइस ऑफ g1 g2 प्लस f1 f2 is equal to c1 plus c2. This is the final condition you will get. ठीक है, एंड दैट इज द फॉर्मूला यू नीड टू रिमेंबर कि जब स्टैंडर्ड सर्कल है, मतलब ये तो अपने आप में एक डायग्राम तो आपको दिमाग में रखना ही रखना है, और उसके बाद में फाइनल जो कंक्लूजन है वो आपको ये दिमाग में रखना है। और डायग्राम ध्यान रहेगा तो ये वाली जो चीज़ है r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर जो कि दोनों सेम है, ये चीज़ दिमाग में रखना है। तो वन थिंग इज दिस, सेकेंड इज दिस, एंड द कॉन्सेप्ट तो डायग्रामेटिकली आप बनाओगे तो यू कैन फाइंड इट आउट। करेक्ट नील। ठीक है, इसको नोट कर लो, फिर एक क्वेश्चन करते हैं। दिस इज द कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनैलिटी अखिल। हाँ, दो सर्कल के ऑर्थोगोनैलिटी के लिए अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है देन दे आर ऑर्थोगोनल। हाँ, ये याद रखना है और डायग्राम याद रखना है। रेड बॉक्स इज नथिंग देवेश, बस ये वाली जो स्टेप है ना, इसको तू सिंप्लीफाई करेगा तो ये आ जाएगा। फॉर्मूला लगा दे, ये स्क्वायर है, अंडर रूट को अलग हटा दे, ये स्क्वायर है, अंडर रूट को अलग हटा दे, ये अंडर रूट को अलग हटा दे, यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे a प्लस बी द होल, a माइनस बी द होल स्क्वायर, a माइनस बी द होल स्क्वायर, LHS RHS कैंसिल होगा, यू आर लेफ्ट विथ ओनली दिस कंडीशन। Yes, it is possible that the two tangents will become collinear, Ashok, and that is the case when they are intersecting at a particular point only. They are externally intersecting. Okay, and in that case, the angle of intersection would definitely be 0. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन लिख रहा हूं। हाँ, आता हूँ नील, मेरे को 2 मिनट दे दे, मैं क्वेश्चन लिख लूँ फिर वापस उस पर जाऊंगा। सर्कल passes through the origin circle passes through the origin and its center is on the line y equal to x. If it cuts the if it cuts circle x square plus y square minus 4x minus 6y plus 10 equal to 0 orthogonally, then find the equation of the circle.
डन। अब प्रीवियस पेज देख लो, करेक्ट चाहिए। अगर सर्कल एक दूसरे को टच कर रहे हैं, सिर्फ दे आर नॉट इंटरसेक्टिंग, दे आर जस्ट टचिंग ईच अदर एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ओनली, मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज वन, then both the tangents will be same, and in that case the angle of intersection would be 0. आई होप लिख लिया हूं मैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर रहा हूं। डायरेक्टर सर्कल हो गया था क्या आप लोगों का? ओके okay. क्वेश्चन का आंसर है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -2x - 2y = 0। यही आ रहा है आंसर। तो आई विल नॉट बी टेकिंग एनी डिफरेंट कॉन्सेप्ट टुडे। जैसे मेरा सर से बात हुआ था, उन्होंने मुझे 2 टॉपिक बोला था, ठीक है। तो जिनके 2 क्वेश्चन हो जाएंगे वो ठीक है, मतलब दे कैन लीव द मीटिंग, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -2x - 2y = 0 इक्वेशन था, और इसका जो आंसर आ रहा है वो भी मैं लिख देता हूँ। तो जिसका आंसर मैच होगा दे कैन लीव द मीटिंग बेटा, ठीक है। -16x, और लास्ट वाले क्वेश्चन के लिए एक और कॉन्सेप्ट है, वो सर आपको कवर करेंगे। उससे डायरेक्ट भी हो सकता है, बट आई जस्ट वांट कि आप एक बार इसकी थोड़ी प्रैक्टिस कर लो, दैट्स ऑल, ठीक है। तो इसमें क्या है, जो पहले वाले क्वेश्चन में, हाँ आई हैव रिटन द क्वेश्चन ऑन स्क्रीन बेटा, दोनों, ठीक है। पहले वाले क्वेश्चन पे जा रहा हूं। ये पहले वाले क्वेश्चन का आंसर है और ये दूसरे वाले क्वेश्चन का आंसर है।
ठीक है, जिसके आंसर मैच हो रहे हैं दोनों के, नो इशू। जिनके नहीं हो रहे हैं, दैट कैन बी इन द मीटिंग। अब देखो, circle passes through the origin and its center is on the line y equal to x. So suppose if my circle is x square plus y square plus 2gx plus 2fy प्लस सी इक्वल टू 0 अगर मैं सर्कल ले लेता हूं, और इफ द सर्कल इज पासिंग फ्रॉम द ओरिजिन देन दिस मस्ट बी इक्वल टू 0। आई होप ये आपको पता है कि कांस्टेंट टर्म क्या होने वाली, 0 होने वाली। सो देयरफॉर माय इक्वेशन ऑफ द सर्कल वुड बी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy इज इक्वल टू 0 होने वाला है। दिस इज माई सर्कल। नाउ द सेंटर ऑफ दिस सर्कल इज, सेंटर कितना है इसका, माइनस जी कॉमा माइनस एफ। एंड भाई सेंटर जो है वो क्या हो रहा है, y इक्वल टू एक्स पे लाई कर रहा है। अभी y इक्वल टू एक्स पे लाई कर रहा है, दैट्स व्हाई आई कैन से कि माइनस जी मस्ट बी इक्वल टू माइनस एफ, एंड द कंक्लूजन इज g इज इक्वल टू एफ। Harshal, if the circle is passing from the origin, then the constant term is equal to 0. 0,0 को satisfy करा, C 0 आ जाए। You can assume, Ashok. We can solve in that way as well, no issues. ऑर्थोगोनल की कंडीशंस लेके सॉल्व कर सकते हैं उसमें, डायग्रामेटिकली इस तरीके से नहीं भी चलना है। अब इसके साथ ऑर्थोगोनल है, तो इसके साथ ऑर्थोगोनल है तो ट्वाइस ऑफ G1 G2, G तो G आ गया, G1 की जगह कितना ले लूंगा मैं, -2 प्लस F इंटू -3 इज इक्वल टू C1 प्लस C2, तो 10 प्लस 0, क्योंकि एक का कांस्टेंट 10 है, एक का कांस्टेंट 0 है। सो देयरफॉर G मस्ट बी इक्वल टू, G और F दोनों इक्वल हैं, तो G मस्ट बी इक्वल टू -1 and which is also equal to F. So this equation of the circle will become finally x square plus y square minus 2x minus 2y. This is our equation of the circle. ठीक है, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन तो एक डायरेक्ट कॉन्सेप्ट है। जब आप रेडिकल एक्सिस वगैरह पढ़ोगे नेक्स्ट फ्यू टॉपिक्स में, सर पढ़ाएंगे आपको, तो उससे डायरेक्ट भी होता है। बट ठीक है, हम यहाँ पे हम अपना जो स्टैंडर्ड अभी तक तरीका जो पढ़ा है वही करेंगे। ठीक है, आई होप क्लियर है। आई विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। सेकेंड क्वेश्चन का आंसर तो यही है यार, मेरे पास तो यही है। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आ जाते हैं अपन। +29 है दोस्त। तो मैं सर्कल को मान लेता हूं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx
हाँ, both the question are done. You can leave. If you want to ask anything related with to this lecture, you can ask at the end of the lecture. ठीक है, कुछ पार्ट जो समझ में ना आया उसके लिए. So वही कंडीशन लिख देता हूँ, ट्वाइस ऑफ G1 G2 इक्वल टू F, ट्वाइस G1 G2 प्लस F1 F2 इक्वल टू C1 प्लस C2. बस आंसर आ जाएंगे मेरे पास, 3 वेरिएबल आ जाएंगे. तो मैं कंडीशन लिख लेता हूँ. नहीं, मैं नया और कुछ नहीं पढ़ा रहा, बस इतना ही पढ़ाऊंगा बेटा. ठीक. This is equation 1. Yeah, this is the last question. That's twice of G into 5/2 plus F into minus 5/2 एक सेकेंड. हाँ, this is equal to 9 plus C. तो ये 5G minus 5F is equal to 9 plus C. into 7/2 plus F minus 9/2 is equal to 29 plus C. So this is 7G बस. अब 3 इक्वेशन, 3 वेरिएबल, जैसे भी आपको सॉल्व करना है. हाँ, मैं ले लूंगा आज. सेकेंड -5 कर लेते हैं. इक्वेशन 4 आ जाएगी. इक्वेशन 5 आ जाएगी. अब ये कर लेंगे तो एफ जी की वैल्यू आ जाएगी डायरेक्ट. जी इज इक्वल टू -8. जी इज इक्वल टू -8 है तो एफ निकल जाएगा, एफ निकल जाएगा तो सी निकल जाएगा. हाँ, 4 - 3 भी डायरेक्ट कर देंगे तो और जल्दी आ जाएगा. करेक्ट. ये आई थिंक -9 आएगा और ये -4 आएगा. हेंस योर इक्वेशन वुड बी दिस. हाँ, जैसे भी आपको सॉल्व करना वो बस इक्वेशन को एंड दैट ऑर्थोगोनैलिटी इज नॉट ओनली रिलेटेड विद दिस सर्कल, है ना, वो भी मैं पहले बोल ही चुका हूँ आपको. जिसको थोड़ा ऊपर चाहिए था ये ले लो. हाँ, सेंटर इज 2,3 रेशो. करेक्ट, एकदम सही बोल रहा है. तो जी और एफ क्या है उसमें?
-2 -3 करेक्ट। तो देखो तो फॉर्मूले में जी और एफ यूज करना है बेटा। ये सर। Yes, you can leave. ठीक है। इफ एनी डाउट गाइस। ठीक है, आई एम एंडिंग द मीटिंग बिट अर्ली, क्योंकि आई थिंक एम सर विल कंटिन्यू। जो भी पार्ट आपका बीच में छूटा हुआ था, आई विल नॉट बी एंटरिंग इनटू इट। Eden, I am with some other batches. नहीं, कोई नहीं, बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है, दूसरे कॉन्सेप्ट के साथ कंबाइंड होगा बेटा ये। बस कॉन्सेप्ट यही है। अब डेफिनेशन इटसेल्फ जो है वो अपने आप में क्वेश्चंस तो कहीं भी घुमा सकती है सर्कल के, राइट। कोई सर्कल का एप्लीकेशन कुछ भी कर सकते हैं, पूरा सर्कल ओपन है अभी आपके लिए, तो क्वेश्चन तो कुछ भी बना सकते हैं, बट कॉन्सेप्चुअली हाँ, ये कोई इतना बड़ा पार्ट नहीं है ये वाला पोर्शन। आई विल सेंड यू द PDF एज वेल। Yes बेटा, you can leave the meeting.